Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 26 पे आज अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्लोका क्रमांक 26। गत स्वार्थम इमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् सवै धीर उदारतः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: He is called undisturbed who goes to an unknown, remote place and freed from all obligations, quits his material body when it has become useless. Purport: Narottam Das Thakur, a great devotee and Acharya of the Gaudiya Vaishnava sect, has sung, My Lord, I have simply wasted my life having obtained the human body. I have neglected to worship your Lordship and therefore I have willingly drunk poison. In other words, the human body is specially meant for cultivating knowledge of devotional service to the Lord, without which life becomes full of anxieties and miserable condition. Therefore, one who has spoiled his life without such cultural activities is advised to leave home without knowledge of friends and relatives, and being thus freed from all obligations of family, society, country, etc., give up the body at some unknown destination so that others may not know where and how he has met his death. Dhira means one who is not disturbed even when there is sufficient provocation. One cannot give up a comfortable family life due to his affectionate relation with wife and children. Self-realization is obstructed by such undue affection for family, and if anyone is at all able to forget such relation, he is called undisturbed or dhira. This is, however, the path of renunciation based on frustrated life. This is, however, the path of renunciation based on frustrated life. But stabilization of such renunciation is possible only by association with bona fide saints and self-realized souls by which one can be engaged in the loving devotional service of Lord. Since surrender unto the lotus feet of the Lord is possible by awakening the transcendental sense of service, this is made possible by association with pure devotees of the Lord. Dhritarashtra was lucky enough to have a brother whose very association was source of liberation for his frustrated life. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो
यहाँ पे वही बार बार अभी हम लोग देख रहे हैं, और इस अध्याय का शीर्षक भी वही है कि जो धृतराष्ट्र है, किस तरह से उन्होंने अपना देह त्याग किया। उन्होंने अपना पहले तो घर और फिर देह। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो बहुत ही भाग्यवान थे, क्योंकि उनको भाई विदुर जैसे उनके घर में भाई थे। तो हम भी अपने सगे संबंधियों के लिए एक तरह का एक वरदान या फिर एक ऑस्पिशियस, एक शुभ व्यक्ति बन सकते हैं, अगर हम इसी तरह से विदुर जी के जैसे पद चिन्हों पे चलेंगे। क्योंकि ये जो पूरा कलयुग में जो कहते हैं ना, मतलब वैष्णव बहुत ही कम हमको मिलेंगे। ऐसे कर्मकांडी या उपासना करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो एक्चुअल जीवन का लक्ष्य जो समझते हैं, केवल अपने लिए नहीं बल्कि जन सामान्य लोगों के लिए। जैसे प्रभुपाद का तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं, वो तो वैकुंठ वासी है, वहीं से आए थे और वहीं पे जाने वाले थे। तो अगर वो वृंदावन से अगर प्रचार के लिए नहीं भी जाते, तो उनका तो जीवन इज अ लिबरेटेड, नित्य मुक्त जीव है। लेकिन हम जैसे बद्ध आत्माओं का उद्धार के लिए वो 7 समंदर पार गए। मतलब शास्त्रों में कहते हैं कि एक सन्यासी कभी क्या कहते ओशन को क्रॉस नहीं करते, वो लांघते नहीं, लेकिन भी उस सब साइड में रखते हुए हम जैसे पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गए। और यहाँ पे देखिए विदुर जी, उनका इतना अपमान किया गया था, उनको क्या क्या, जैसे अभी समीर प्रभु कह रहे थे कि हम लोग बार बार उनको शूद्र के पुत्र क्यों कहते हैं। तो ये सब होते हुए भी एक वैष्णव, वो मतलब उनका जो चेतना होता है, वो अमानी न मान देना का कैसे जीना है, ये विदुर जी एक मतलब एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो सोच सकते हैं कि चलो धृतराष्ट्र इतने मतलब पापी आदमी है, इसको ऐसे ही मतलब उसका ऐसा ही जीवन व्यतीत होने दो। जैसे इसके पहले वो मतलब चलो इनके मतलब पांडवों के अंडर ही रहने दो उनको, और अपना जीवन जो है उनको भोगने मतलब भुगतान करने दो जो जो उन्होंने पाप किए। ऐसे सोच सकते थे वो, जैसे हम लोग सोचते हैं ना। हम लोग काफी लोगों को देख के बोलते हैं अच्छा है, अभी पहले बहुत ही गर्व में रहता था, अभी देखो भगवान ने दिखा दिया, और हम खुश होते हैं। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं। वैष्णव भले ही उनके साथ अगर कोई व्यक्ति बुरा भी करता है, तभी भी उनको बुरा लगता है कि अरे ये जो व्यक्ति है, इसको आगे चल के इसका दंड मिलेगा, क्योंकि कर्म ऐसे है। तो तभी भी उसको बुरा लगता है, और जब उसके साथ में सही में कुछ दुर्घटना होती, तब वो वैष्णव जाके उनको तभी भी संभालते हो, बोलते कि अभी जो हुआ सो हुआ, अभी आप भक्ति करो, आप भगवान के शरण आओ। तो वैष्णव का ये गुण है। तो यहाँ पे वही आगे अभी जो है लिखा गया है कि वो व्यक्ति जो बिना विचलित हुए एक ऐसी जगह जाके, मतलब पूरे जो उनका जो संबंध है भौतिक, जो भी उनका परिवार के साथ अपने मित्रों के साथ, तो सारे संबंध त्याग करके बिना विचलित हुए जो अपना देह त्यागता है। और जैसे भगवान कहते हैं ना, धीरस तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति किसी भी इस भौतिक जगत में किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, न मुह्यति। वो कभी वो अर्जुन जब लड़ाई नहीं करना चाहता था मोह के कारण, तभी वो भगवान ने बोला था कि धीरस तत्र, तुम धीर बनो। और यहाँ पे वही, तो ऐसा धीर व्यक्ति इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब, जो अपना देह त्याग सकता है बिना किसी आसक्ति के। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर का पाद का जो जो मनुष्य जन्म पाइला, राधा कृष्णा न भजिला, जानो सुनी विष खाइला, उसका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा ये मनुष्य जन्म का वरदान मिला, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने भगवान श्री श्री राधा कृष्णा का भजन नहीं किया, और जाने या अनजाने में मैंने क्या किया है, विष खाया।
इसलिए क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि मनुष्य देह का उद्देश्य क्या है। काफी लोगों को लगता है कि मैंने अपने मुझे अच्छी पत्नी मिली, मुझे अच्छे बच्चे हुए, कोई एक अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई अकाउंटेंट बन गया, और उसको लगता है यही जीवन का उद्देश्य है या यही उसकी जीवन की सफलता है। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि ये सारा जो है क्षणिक है, और ये केवल इस जीवन के लिए कुछ अच्छे कर्म, पुण्य कर्मों की वजह से ये सब हुआ। लेकिन आगे क्या होगा, आगे इस जन्म में जो हमने बुरे काम किए या जो पाप किए, उसके वजह से हमको अगला जन्म मिलने वाला है। और उस जन्म में क्या होगा, जो भी हमने बुरे काम किए हैं तो उसके लिए एक ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें हमको जो क्या बोलते हैं, दुख आएंगे। तो ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्कर चलता रहेगा, पाप करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा सुख पाओगे, सॉरी पुण्य करोगे तो, और पाप करोगे तो उसका भुगतान करोगे। इसीलिए हम वैष्णवों को, जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमको ये सोचना है कि ये जो मनुष्य देह क्या है, इट इज अ प्रेपरेशन फॉर जो अपना मृत्यु जो है वो एग्जामिनेशन। तो हमको वो जो फाइनल एग्जाम है, जो मृत्यु, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए ये मनुष्य देह मिला गया है। और जब इतना अच्छा भाग्य के कारण हम इस भगवत भक्ति में हमको मौका मिला है भगवत भक्ति करने का, तो हमको इसको पूरी तरह से उसका क्या कहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। और अगर देखा जाए, हम लोग अगर इसमें नाकामयाब भी हो गए, जैसे भगवान बताते हैं भगवत गीता में, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायतो महतो भयात्। तो एक बार पूछा गया था कि ये सबसे बड़ा भय क्या है, तो सबसे बड़ा भय क्या है कि हम जो इस 84 लाख योनि में भ्रमण कर करके जो मनुष्य देह प्राप्त किया है, और अगर इस मनुष्य देह में अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वापस हम उस 84 लाख योनि में वापस भ्रमण करेंगे, और वो भ्रमण कर करके पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लगेंगे वापस मनुष्य देह मिलने के लिए। तो सबसे बड़ा जो भय ये है। तो और इसलिए भगवान कहते हैं कि आप थोड़ा सा भी भक्ति करोगे तो इस भय से बच सकते हो। इसका मतलब अगर हम नाकामयाब भी हो गए अंत काल में, अगर भगवान का हम स्मरण कर ना पाए किसी वश, क्योंकि हमारे अगर उतने क्या कहते हैं, हमारी भक्ति उतनी परिपक्व नहीं हुए, तो भी एक चांस है कि हम अगला जन्म तो एटलीस्ट हमको मनुष्य का मिलेगा, और जहां हम रुके थे भक्ति में वहां से शुरू होंगे। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो इसलिए हमको ये याद रखना है। और एक दो हफ्ते पहले श्याम रसिक प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा सुंदर क्लास लिया था, जिसमें अर्जुन भी यही पूछते हैं कि भगवान अगर किसी कारण, किसी वश अगर कोई आपकी भक्ति प्रारंभ करता है लेकिन फिर उसको पूरी तरह से उसमें सफलता नहीं होती और वापस वो भौतिक कार्यों में लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। मतलब उसने काफी देर तक आपकी अच्छी तरह से भक्ति की, लेकिन फिर कुछ कर्मों के हिसाब से या उसके जो भी कारण, वो वापस भौतिक जगत में या भौतिक कार्यों में लग गया। तभी भगवान क्या कहते हैं, वो पूरे छठा अध्याय जो प्रभु ने बहुत ही श्लोकावाइज हमको समझाया, तो वो बोल रहे थे, तो वहां पे भगवान एक वर्ड यूज करते हैं, तात। उस श्लोका में वो बता रहे थे तात। तात यानी जैसे वो पहले श्लोका दूसरे अध्याय में अर्जुन को फटकारते हैं ना, क्लैबियम, क्लैबियम मतलब बोलते हैं ना, मतलब इम्पोर्टेंट। तो वहां पे वो जैसे उनको फटकारते हैं क्लैबियम, उसी तरह से छठे अध्याय में वो तात। और श्याम रसिक प्रभु बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, तात मतलब जैसे एक बाप अपने बेटे को बोलते ना, मेरे बेटे या मेरे पुत्र, तो उस तरह से मतलब एकदम प्यार से अर्जुन को समझाते कि तात, तो मेरे बेटे, अगर कोई भी मेरी भक्ति में आ गया और किसी वश उसको पूर्ण कर नहीं पाया, तो ऐसे उसका न विनाश
गच्छति, मतलब इसका ऐसे जीव का कभी भी विनाश नहीं होगा। और फिर वो आगे बताते हैं ऐसा जो है, या तो वो किसी धनी परिवार में जन्म लेगा या किसी वैष्णव के घर जन्म लेगा, और फिर जहां से उसने रोका था भक्ति वहीं से वो शुरू करेगा। तो दो चीज हमको देखो कितना गारंटी दे रहे हैं भगवान। एक तो जो हमारा आध्यात्मिक फल है या फिर आध्यात्मिक कार्य है वो कभी क्षीण नहीं होता, इट इज परमानेंट, इट इज इटर्नल। अगर आज किसी को पता चला कि जो बड़े कोई एक उद्योगपति, मतलब रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, उनकी मृत्यु हो गई, तो और फिर उसने अगला जन्म उसको मिल गया, मनुष्य का ही मिल गया समझो, तो वो अगर उसको पता भी चल गया कि पहले जन्म में मैं ये आदमी था, ये मेरा कंपनी मैंने बनाया था, अगर वो जाके भी बताएगा तो उसको वो लेंगे क्या? वो तो बोलेंगे नहीं, ये तो कोई ढोंगी है या कोई है जो हमारा पैसे हड़पने के लिए आया है, भले ही वो सत्य में बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले जन्म में उसने जो कमाया खत्म, वो अभी जीरो है। उसको याद भी आके अगर वो जाके उन लोगों को बताएगा तो वो लोग उसको या तो धक्के मार के बाहर निकालेंगे या फिर कंप्लेन करेंगे कि ये हमको चीट कर रहा है बोल के। लेकिन आध्यात्मिक देखिए, आप जो कुछ भी थोड़ा सा भी 1%, 0.1%, 2% जो कुछ आप भक्ति करते हो वो आपका परमानेंट हो गया, वो कभी क्षीण नहीं होगा। और जब आपका नेक्स्ट आप जब भक्ति में आते हो तो आपका वहीं से शुरू होगा। और ये भगवान खुद अर्जुन को गारंटी देते हैं। और वही श्यामल प्रभु बता रहे थे, मतलब एकदम इतने जैसे पिता अपने बच्चों से जैसे बात करते हैं, मेरे बेटे, तो वो बोल रहे थे, वो तात, वो शब्द का इस्तेमाल करते हो, अर्जुन को दिलासा दे रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, ये जो आध्यात्मिक जो जीवन है इसमें केवल आपका क्या है, आपका फायदा है। और इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो कभी इस मृत्यु के भय से, मृत्यु के जो सही में जो भक्ति कर रहे हैं प्रामाणिक तरह से, और जो फिलॉसफी समझ रहे, और जो जिनको पता है कि हम लोग ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है, और वो जितने क्या कहते हैं प्रोग्रेस करते जाते हैं, तो ये मृत्यु जो है उनको बिल्कुल उनसे डर नहीं लगता। वो धीर, एक्चुअल जो धीर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, आप धीर बनो, वो एक्चुअली धीर बनते जाते हैं। और हम भी देख सकते हैं कि पहले भक्ति में आने से पहले हम कितने डरते थे, लेकिन अभी क्या है, ऐसा नहीं कि डर चला गया, लेकिन एटलीस्ट हमको उतना नहीं डर लगता, क्योंकि हमको अभी हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मृत्यु जो है ये सत्य है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, एज श्योर एज डेथ, कोई नहीं बच सकता, और हमको पता है ये आना ही है। सेकेंडली हमको पता है कि ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे ये एकदम दुखालय में, उससे भी हम लोग अभी उतना विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि इट इज अ जेन्युइन, मतलब प्रभुपाद जो भी बता रहे हैं रियलिटी बता रहे हैं हमको। ऐसा नहीं कि आप भक्ति में आ जाओ तो आपका सारा लाइफ एकदम क्या कहते हैं, आपको मतलब राजा की तरह रहोगे, आपको कोई दुख नहीं आएगा, नहीं, सब आएगा, दुख आएगा सब। और इनफैक्ट भक्ति में आने के बाद ज्यादा दुख आएगा, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान क्या करते हैं, जल्दी से उसका हिसाब किताब निपटा देते हैं। क्योंकि जैसे हमारे कर्म और जब पाप जैसे निपट जाते तब एक्चुअली हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, तेषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, जैसे अपने पाप क्षीण होंगे और जब हमारे भक्ति में पुण्य अर्जित होंगे तब हम दृढ़ व्रता बनेंगे। नहीं तो क्या हिलते डुलते हिलते डुलते भक्ति करेंगे। तो वही यहाँ पे, तो वी विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि द बेस्ट वे टू क्विट, मतलब किस तरह से हमको ध्येय छोड़ना है। एक ऐसी जगह आजकल हम देखते हैं कि इवन जो किसी का मृत्यु भी जब होता है कोई बड़े व्यक्ति का, तो वो भी मतलब कितना धूमधाम से ऐसा वो लोग धूमधाम से मनाते हैं जैसे कि मानो उसने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको पा लिया है।
वो बेचारा पता नहीं उसके मतलब जो जो कर्म उसने किए हैं, क्योंकि आज के कलयुग में जितने आपके पास ऐश्वर्य बढ़ता है उतना आप पापमय जीवन में लिप्त हो जाते हो। एंड इट इज वेरी सैड। मतलब पहले के जो हम बोलते थे ना राज ऋषि, उनके पास सब कुछ होता था राज ऋषि के पास, और वो जितना उनके पास ऐश्वर्य होता था वो उतना भगवान की भक्ति करते थे। और आज पूरा उल्टा है। आज मतलब ऐश्वर्य मतलब भगवान ने मुझे ये भोग करने के लिए दिया है, और ऐसा सोच सोच के इतने पाप में कृत्य में हम लोग मतलब लिप्त हो जाते हैं कि जब तब ध्येय छोड़ने के बाद पॉसिबल ही नहीं है कि उसको कुछ अच्छा गति मिल सकता है। क्योंकि इट इज वेरी सिंपल। अगर आपने कुछ अच्छा मतलब आपने भगवान के बताए हुए रास्ते पे अगर आप नहीं चले तो आपको अच्छी गति कैसी मिल सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से वो पूरा समारोह निकालते हैं। वो एक ऐसे बड़े लोगों का जब मृत्यु होता है तो इट इज सैड, क्योंकि एक तो उसका जो डेस्टिनेशन उसको पता नहीं है, और ये लोग यहाँ पे और फिर बहुत कुछ बोला भी जाता है उसके इसमें कि आदमी इतना अच्छा था, ये था वो था। बिकॉज क्या होता है कि अभी कुछ तो बोलना है, और अगर इतना बड़ा धनी व्यक्ति है तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा, बुरा तो नहीं बोल सकते। तो फिर ऐसा होता है। तो इधर यहाँ पे बताया गया है कि वन शुड मतलब अपना मृत्यु भी ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले। और मेन थिंग ध्येय छोड़ने से पहले हम लोगों को ये जितना भी आसक्ति है परिवार के प्रति, इस जैसे प्रभुपाद बोलते कंट्री, इट स्टार्ट्स विद फैमिली, फिर कम्युनिटी, सोसाइटी, ऐसा करते करते हम अपना आसक्ति बढ़ाते जाते हैं। तो ध्येय छोड़ने से पहले ये सारे जो आसक्तियां हैं फ्रॉम विद इन, मतलब एकदम अंदर से हमको इससे मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर इनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती रहेगी या रहेगी तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति 100% क्या बोलते हैं अपना आसक्ति कभी नहीं होगी। और उसी के वजह से मतलब बिकॉज हम लोग यहाँ पे इतने आसक्त है, उसके वजह से हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं है। और उसका कारण यही है कि हमको लगता है कि भगवान, क्योंकि अब वो एक एनवी है हमें अभी भी कि भगवान जो है वो तो ही इज द ओनली इंजॉयर। तो अगर वही इंजॉयर है तो फिर हम लोग कब इंजॉयर बनेंगे, हम लोग कब भोग करेंगे। तो उसकी वजह से हम ये भगवान के प्रति आसक्त नहीं बन पाते। और इसलिए यहाँ पे हम देख सकते कि धृतराष्ट्र भले ही उनका पूरा जीवन क्या था, वो पाप में कृत्य करते जिए, लेकिन उनका बहुत ही अच्छा भाग्य था कि उनको विदुर जैसे उनके भाई, तो हम लोगों को भी ऐसे एक जीवन जीना है कि एटलीस्ट हम लोग थोड़ा तो विदुर जैसे हमें गुण आए। क्योंकि फिर क्या होगा, जीवन सार्थक करो करो परोपकार। ये जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो टैग लाइन दिया है कि पहले अपना जीवन सार्थक करो और फिर दूसरों का, तो इससे हमें सीख सकते हैं कि लाइफ में खुद का जीवन सार्थक होने के बाद जब हम औरों का जीवन सार्थक करते हैं, दैट इज एक्चुअली अपना सार्थक जीवन। हम लोग ऐसे ही नहीं उछलते, प्रभुपाद का नाम सुनते हैं इस तरह से हम लोग उछलते हैं, नाचते हैं, और प्रभुपाद का हम लोग हर एक आविर्भाव तिरोभाव, इस्कॉन में बिना प्रभुपाद के कुछ भी नहीं। जैसे एक बार भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बताया था कि विदाउट प्रभुपाद हमको कृष्णा भी नहीं चाहिए, फर्स्ट प्रभुपाद एंड देन कृष्णा। तो हमारा प्रभुपाद के प्रति इतना कृतज्ञता क्यों है, क्यों कृतज्ञ है? क्योंकि प्रभुपाद ने हम जो मतलब बिना डायरेक्शन के, बिना किसी गोल के हम जो अपना जीवन जी रहे थे, ऐसे हर इतने सारे जीवों को उन्होंने उद्धार किया। तो देखिए मतलब प्रभुपाद का इसमें क्या फायदा है? तो एक्चुअली ऐसा देखा जाए मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये वैष्णव की क्वालिटी होती है, पर दुख दुखी। तो उसी तरह से विदुर जी भी यहाँ पे, विदुर जी चाहे तो वो बोल सकते थे अच्छा धृतराष्ट्र को भी समझ में आएगा, लेकिन नहीं, वो गए वहां पे
और उन्होंने केयर भी नहीं किया कि अभी धृतराष्ट्र इतने मतलब इतने मटेरियलिस्टिक है कि अगर मैं उनको समझाऊंगा तो समझेंगे कि नहीं पता नहीं, हो सकता है मुझे गलत समझे। उन्होंने उसका भी केयर नहीं किया, उन्होंने जाके उनको डांटा फटकारा और उनको होश में लाने के लिए, जैसे हमने देखा, उन्होंने बोला अरे तुम एक कुत्ते की तरह यहाँ पे हो और भीम तुमको जैसे एक पालतू कुत्ते को खाना डालते हैं ऐसा खाना तुमको दे रहा है और तुम खा रहे हो, तुम्हारे पुत्रों को इन्होंने मारा और तुमको थोड़ा भी ये नहीं है। ये सब उन्होंने शब्द यूज क्यों किए? ताकि वो जगे। तो कभी कभी क्या होता है, हम इतने गहरी नींद में होते हैं तो थोड़ा हल्का सा ऐसा जगाने से नहीं जगते, कभी कभी लात मारनी पड़ती है तब जगते हैं। तो ये सारे जो शब्द है विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे, वो एक तरह से उनको लात मारने की तरह। और तभी मतलब, और वही ना, वैष्णव का संग इतना पावरफुल होता है कि धृतराष्ट्र को भी समझ में आया कि ये जो विदुर जो मेरे भाई है, भले ही मैं उम्र में इनसे बड़ा हूं लेकिन मुझसे ज्यादा इनका आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार है। और वो संग के कारण, विदुर जी के संग के कारण लास्ट मोमेंट में उनको अकल आई और फिर वो उन्होंने जैसे कहा वैसे वो उन्होंने सुना। तो हम देख सकते हैं कि वैष्णव का संग कितना शुभ है, कितना ऑस्पिशियस है, क्योंकि हम भले ही सोए हैं लेकिन वैष्णव जो है हर प्रति क्षण जब भी उनको मौका मिलता है वो हमें जगाने की कोशिश करते हैं। और जब हम आध्यात्मिक स्तर पे जग जाते हैं तो एक्चुअली तब हमारा एक्चुअल शुभ जीवन शुरू होता है। नहीं तो भौतिक स्तर पे तो सब लोग जगे हुए हैं, हर कोई, हर किसी को अमीर बनना है, हर किसी को यश कमाना है, हर किसी को गाड़ी बंगला, तो सब जगे हुए हैं। माया देवी ने एकदम लात मार के जगा के रखा है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे हम सब सोए हुए हैं। और जब प्रभुपाद के अनुयायी, हमारे गुरु, हमारे वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव आचार्य, ये जब हमको जगाते हैं, और जब हम, इसलिए श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, प्रभुपाद के किताबें, ये सारे वैष्णव भजन, ये एक तरह का क्या कहते हैं, हम सोए हुए जीवों को जगाने का, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, तो ये जगाने का एक माध्यम है। अगर हम, और इसमें अगर हम सही में अगर जग गए तो हमारा सही में शुभ, जो मनुष्य जीवन का शुभ आरंभ हो गया, ऐसा हम सोच सकते हैं। और वही, और इसलिए लाइफ इज एन, एक पूरा जो अपना जीवन है, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर अ फाइनल एग्जाम कॉल्ड डेथ। जो मृत्यु है वो हमारा परीक्षा है, और उस परीक्षा के लिए हमको ये पूरा जीवन दिया हुआ है क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। और प्रभुपाद इस मतलब इस अनुवाद में कहा है, he is called undisturbed who goes to an unknown remote place, find place and freed from all obligation, quits his material body when it becomes useless। अभी हम, आप मुझे बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो शरीर है अभी यूजलेस है? हाँ, जो 80-90 तक जी के अभी जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, हाँ, उनको हम देख के बोल सकते कि हाँ अभी इसका जो शरीर है ऑलमोस्ट यूजलेस, क्योंकि वो बिना किसी के सहयोग के कुछ भी नहीं कर पाता, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना शौच कर पाता है, ना नहा सकता है। ओके, लेकिन अभी हम लोग क्या सोचेंगे कि हाँ नहीं, मैं तो अभी 30 साल का हूँ, या मैं 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ, तो मेरा बॉडी यूजलेस नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, ये मृत्यु जो है कभी भी आ सकती है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। वी शुड नॉट थिंक कि ये एक्सटर्नली जो हमको दिख रहा है तंदुरुस्ती, our body is any time useless मतलब क्या? मृत्यु, मतलब मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हमेशा ये याद रखना है, ये शरीर जो है ये कभी भी गिर सकता है। ऐसा मत सोचिए कि 60 साल के बाद में मैं तब सोचूंगा कि अभी मेरा शरीर जो है यूजलेस होने वाला है। एक्चुअली अभी भी अगर हमको सोचना है कि ये जो शरीर है, इफ आई डोंट यूज इन भक्ति, इट इज यूजलेस। अगर मैं भगवान का चिंता कर रहा हूँ तो ही ये तंदुरुस्त है। क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर अभी भगवान का नाम जप करते 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 अगर मैंने इस शरीर छोड़ दिया, तो भले ही मैंने छोड़ दिया, लेकिन इट वाज गुड, क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा था। और अगर मैं सोचूंगा अरे अभी तो मैं तंदुरुस्त हूँ, 60 साल तक मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा सोच के मैं पिक्चर देख रहा हूँ या मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ, और तभी अगर मुझे अटैक आ गया अचानक, क्योंकि आजकल किसी को कभी भी आ जाता है। एक बड़े सिंगर थे,
वो कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे, सब लोग ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे। फिर क्या हुआ, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल लेने तक वो मर गए। यंग, एकदम बहुत ही यंग, इतने सारे फैन है उनके, कोई बचा नहीं पाया उनको। तो अगर मैं ऐसा सोचूंगा मैं तंदुरुस्त और तभी अटैक आया, देन व्हाट वो बॉडी यूजलेस हो गया और मैं भगवान का भी भक्ति नहीं कर पाया, मतलब दोनों तरफ से हार हो गई। तो इसलिए हमेशा जब हम अपना डेली हर क्षण हमको ये सोचना है, एज लॉन्ग एज मैं भगवान के चिंतन में हूँ या उनके नाम का गुणगान कर रहा हूँ, वैष्णव का संग कर रहा हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। जैसे ही हम और कुछ कार्य कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली वी आर इन अ वेरी डेंजरस पोजीशन, क्योंकि शरीर हम कभी भी हमारा छूट सकता है, कभी भी गिर सकता है। और इसलिए हमको याद रखना है, आवर बॉडी इज यूजलेस व्हेन वी आर, नो मैटर क्या एज है, क्या आपका वेट है, आप जिम जा रहे हो, या वो बॉडी आपका यूजलेस है अगर आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो, या फिर आपका हर कार्य में आप भगवान के चिंतन नहीं कर रहे हो। योर बॉडी इज गुड अगर आप जो भी ऑफिस में हो, घर पे हो, सोए हुए हो, लेकिन आपके मन में अंदर से आपका जो है कृष्ण केंद्रित, आप कृष्ण केंद्रित हो, मतलब भले ही आप ऑफिस में काम कर रहे हो लेकिन सोच रहे हो भगवान के बारे में, सोच रहे हो आप वैष्णव का संग कर रहे हो, मतलब भगवान का मतलब कृष्ण केंद्रित हो, देन ओनली आपका जो जो देह है वो तंदुरुस्त है। अदरवाइज अगर एक क्षण के लिए भी आप कुछ इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहे हो, इमीडिएटली सोचना ये मेरा बॉडी यूजलेस है, और बॉडी कभी भी गिर सकता है तो हमने देखा है कितना, और ये दुकालय शाश्वतम, वापस अगर हमको इधर नहीं आना है, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और एंड मेन थिंग यही कि डेथ अपना जो एग्जाम है, जितना अगर हम पास होना है तो हमको जैसे प्रभुपाद ने बताया है हमको वही करना है, और हमको भी विदुर जी के जैसा अपना भी जीवन का उद्धार करना है, और जितने भी जीव है अगर हम कर सकते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है। और यहाँ पे सभी लोग धृतराष्ट्र के मेंटेलिटी की है, तो हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं इन लोगों से बात करके फायदा नहीं, ये सुनते नहीं। हम लोगों को विदुर जैसा एटीट्यूड होना है, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। अगर 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 हमें किसी ने अगर ऐसा पकड़ा, सोच के हमको अगर छोड़ दिया होता कि अरे ये सुनने वाला नहीं है, ये खुद को बड़ा होशियार सोचता है, जब खुद गिरेगा तब समझ में आएगा, अकल आएगी, अगर ऐसा सोचते तो हम भी भक्ति में नहीं आते। हमको भी किसी ने पकड़ा, हमको भी किसी ने बहुत सहन किया, हमारे एटीट्यूड को सहन किया, हमारे उल्टा जवाब भी दिया रहेगा, कितने लोगों ने सहन किया हुआ है। तो बट स्टिल वैष्णव ने हमको पर दुखी होने के कारण छोड़ा नहीं, तो हमको भी ऐसा ही एटीट्यूड रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है, और यही सबसे बड़ा सर्विस होगा हमारे गुरु के लिए, प्रभुपाद के लिए, और इस पूरे परंपरा के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू पेशेंटली लिसनिंग। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा आपका माता जी। क्लास तो बहुत अच्छा ही था, बहुत बहुत अच्छा था। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि भक्तों का संग करना, भागवतम सुनना, ये सब कितना जरूरी है। हमें अगले जन्म का पता नहीं, लेकिन हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हमेशा भागवतम करते हैं, तो भगवान हमें ये सुनिश्चित कर देते हैं। अगर आप भक्ति में हो तो अगर हम लोग अगर भगवत धाम भी नहीं जा पाएंगे तो अगला जन्म हमें निश्चित ही मनुष्य का मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। यस माता जी, यस, बहुत ही सही आपने कहा माता जी। हरे कृष्णा। और जस्ट इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, खाली एक आज हमारे साथ सुरेश प्रभु जो डेली आते हैं, आज उनका जन्मदिन है, बहुत ही अच्छे भक्त है, तो उनके लिए एक प्रेयर करेंगे हम प्रेयर सेशन में, सुरेश प्रभु के लिए, आज उनका जन्मदिन है हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छे उन्नत भक्त है। हरे कृष्णा। सुरेश प्रभु, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड हम लोग इसको प्रेयर में लेते हैं। हम लोग विल ऑल विश हिम एंड विल प्रे फॉर हिम। प्रभु का जैसे था हमेशा एज यूजुअल होता है वैसे क्लास, इट वाज वेरी नाइस,
इसमें जस्ट वांट टू हाईलाइट वन पॉइंट जो इस श्लोका का है कि जब अपना बॉडी यूजलेस हो जाता है तो वी हैव टू गो एंड क्विट अवर बॉडी इन सम अननोन प्लेस। ये जो आज का जो श्लोक है इसका एक मेन जो था मतलब इंस्ट्रक्शन व्हाट विदुर जी इज गिविंग टू धृतराष्ट्र। बोले तुम यहाँ पे रहोगे तो सब मतलब जो और आसक्ति में रहोगे। तो दैट्स वाई हम मतलब ये उनके लिए नहीं, हम सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है। मैंने राधा गोविंद महाराज जी के भी लेक्चर में सुना था, बोलते हैं हमेशा व्यक्ति को किसी जब ऐसा उसको लगे कि अब मतलब मेरा टाइम कम है, जैसे प्रभु ने बोला कि अपने को पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम लोग एटलीस्ट 50, 55, 60 तक पहुंच गए हैं, हम लोग को लगता है अब हाँ सब अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया है, तो फिर हम लोगों को ये स्टेप जरूर लेना चाहिए और वी शुड क्विट अवर बॉडी इन एन अननोन प्लेस। मतलब इसका जो वर्ड है वो अविज्ञाता गति ही, मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं जगह जानता हूँ चलो यहाँ पे ये जगह मैं जानता हूँ यहाँ पे चला जाऊँगा या उस जगह पे, नहीं ऐसा नहीं, टोटली अननोन प्लेस पे जाके वी हैव टू क्विट अवर बॉडी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस श्लोका में है। और दूसरा पॉइंट ये बोलना था कि नरोत्तम दास ठाकुर जी भी इस पॉइंट को मतलब ये करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जानिया सुनिया विष खाइनु, मतलब मैंने अपना पूरा जीवन वेस्ट कर दिया, मैंने अभी तक जो था मैं जानबूझ के सिर्फ विष खा रहा था, तो एटलीस्ट मुझे अब मैं जो है इसको अच्छे से भक्ति करूं। तो ये हम लोगों को जब रियलाइज हो जाए कि हम लोगों को भगवान का भक्ति करना है तो और जब मतलब अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो जाए तो फिर किसी एकांत स्थान में, एकांत की बजाय मतलब जो अननोन प्लेस है वहाँ पे जाके हम लोगों को ये जो है अपना बॉडी देह का त्याग करना चाहिए। और दूसरा एक वर्ड जो ताप, जो सूरत माधव प्रभु ने बोला था, जो हिज ग्रेस श्याम रसिक प्रभु जो अपने ग्रुप में पहले भी एक बार आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे समझाया तात यानी एकदम कितना प्यार से पुकारते हैं। और यही वर्ड युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी आते हैं उनके लिए यूज करते हैं, हे तात। तो ये एक था। और दूसरा जो प्रभु ने एग्जाम्पल दिया किसी अमीर व्यक्ति का, और वो अपना देह त्याग देता है और भले उसको अगले जन्म में याद हो तो वो जाके क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा प्रॉपर्टी मैंने बनाया है, तो उसको धक्के मार के निकाल देंगे। तो उसके लिए एक प्रभुपाद जी हमेशा एक स्टोरी बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति था और उसने मतलब बहुत उसको मतलब घमंड था अपना ऐश्वर्य का, तो और उसके बराबर सामने जो था एक मोची रहा करता था। तो वो जो धनी व्यक्ति था जब एक दिन मतलब मृत्यु हो गया उसका, तो उसका आसक्ति के कारण वो मतलब उसको धन तो नहीं मिला, लेकिन बराबर उसके सामने उसके घर से आसक्ति था, तो उस घर के सामने जो मोची रहता था उसके घर में उसको जन्म मिला। और उसको याद आ गया, अरे यार मैं तो यही वो तो फलाना सेठ था, ये मैंने बनाया है, ये मेरे बच्चे हैं। तो जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो गया उधर, बोला कि दरवाजा ठोका तो बच्चों ने खोला। बोलता है अरे बच्चों कैसे हो तुम लोग? उनको तो पता था ये मोची का बेटा है, ये इधर क्या कर रहा है। तो बोलता है क्या हो गया? बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा नाम ये है वो करके वो सब जब बताना शुरू करता तो वो जो व्यक्ति उसी के अपने पुत्र वो गुस्सा हो जाते, बोलते ये मोची का जो है मतलब मोची का बच्चा आके इधर अभी हम लोगों को हमारा प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, और लिटरली उसको जूते मार के उसको धक्के मार मार के वहां से निकाल देते हैं। तो इससे मतलब प्रभुपाद जी हम लोग को ये बोलते हैं कि ये सबक सीखना चाहिए कि धन का जो आसक्ति है वो हमको मतलब कितना भी हम धन जमा कर ले, हम लोग वाल्मीकि की तरह या मृगारी की तरह गलत काम करके भी हम अपना परिवार का पालन पोषण करें, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं है। हम लोग को अपना जो शरीर है हम लोग को
भगवान का भक्ति में लगाना चाहिए। ये एक मैसेज हम लोग को इस छोटी चीज जो कथा है प्रभुपाद जी बताते हैं उससे हमको लेना चाहिए। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. Thank you very much. Prabhu. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। बार राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें महाराज बता रहे थे कि हम अपने शरीर से कितने आसक्त होते हैं, अपने संबंधों से कितने आसक्त होते हैं। उनसे अगर हमें सच में उन्हें टेस्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? 8 दिन के लिए किसी क्या बोलते हैं धाम में जाके रहना चाहिए, वृंदावन, मायापुर, या और जब हम लोग ऐसे जाके रहते हैं तो किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, ना अपने पास मोबाइल रखना चाहिए, ना मेल से, सबसे दूर ऐसे महाराज बोल रहे थे ऐसे रहो जैसे कि आप मर गए हो, ऐसे जाके 8 दिन रहो और उसके बाद आके देखो आप क्या बदला है, कुछ आपके बिना कुछ फर्क पड़ा है, आप नहीं थे 8 दिन तो क्या हुआ, मतलब कोई सब बिगड़ गया है क्या, सब मर गए क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं ना। तो ऐसा है कि अगर हमारा ये शरीर नहीं रहेगा तो भी कुछ भी बदल नहीं होगा। इसलिए हमें इसी जन्म में भक्ति करके आगे जाना है। हमें हमारा जो मेन उद्देश्य है भक्ति करना, वो करना है, ना कि संसार में फंस जाना है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। जो आपने कहा बिल्कुल सही बताया। थैंक यू। यस पंकज प्रभु। Like to highlight one more thing. Yeah, very nicely explained, Smriti. According to this text also, no, that verse that you read, it is also indicative that द्वापर युग खत्म होने वाला था, और and it looks like varnashram, if you go to look the ashram part, like the spiritual order, like people were already being started to forget their, like their duties as like a varnashrama, like a varna and ashram, like a vanaprastha or some, like the forest road, like at the age of 50 or something you're supposed to leave, and this is an indication that people had already started to forget, because it was the end of almost the Dwapar Yuga and Kali Yuga was about to begin. So this also indicates and Vidur was also trying in a way to revive that thing. So to like, this is an indication that people had already started to forget at the end of the Mahabharata, like the Varnashrama system. Yeah, that's it. Yes, थैंक यू पंकज प्रभु, थैंक यू सो मच। आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही अच्छा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्रभु। एस सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास आपने दिया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और प्रभु जी जैसे वो पॉइंट बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर एक समय जो है अपना हम लोग को भगवान के गुणगान में, या वी शुड थिंक अबाउट लॉर्ड, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और आप जैसे बोल रहे थे प्रभु जी मृत्यु के बारे में, तो मुझे जैसे आप बोल रहे थे धनी व्यक्ति वो उसके बारे में बता रहे थे, तो भी मुझे याद आ गया कि मेरे प्रीवियस जो मैनेजर थे उनके पास बहुत पैसा था, बहुत। उनको कोविड हो गया और कुछ 7 दिन हॉस्पिटल में थे, और डॉक्टर ने 8वें दिन उनको बोला कि आप नेक्स्ट दिन जा सकते हो करके। और रात को उन्होंने वाइफ को उधर मिल नहीं सकते थे, तो फिर उन्होंने फोन किया वाइफ को कि मैं कल आ रहा हूँ करके। तो वाइफ ने उधर घर पे एकदम बड़ा पार्टी वगैरह सब ऐसा रखा, सब गेस्ट को इनवाइट किया, लेकिन कोई आने वाला नहीं था ये भी पता था, लेकिन उन्होंने सब उनके रिलेटिव को ये किया था कि आ जाओ, क्लोज रिलेटिव्स को। लेकिन वही रात उनको अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गए। तो हम लोग देख सकते कि मतलब कुछ भी चीज, इतना छोटा सा वायरस अभी हम लोग को इतना परेशान कर सकता है, तो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, कुछ भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग माया, जैसे आप बोल रहे थे कि माया इतनी मार रही है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सो प्रभु जी रियली वंडरफुल क्लास। और मैंने कल आपको एक वीडियो डाला था माता जी का, वृषभा नबी माता जी,
तो वो माता जी आज सुबह शी इज नो मोर, वो गोलोक धाम गई है। और कल राधना स्वामी महाराज जी ने उनको फोन करके उनको इनिशिएशन किया, उनको नाम दे दिया माता जी को। और वो माता जी एवरी डे चंपा फ्लावर हाथ में लेके, एवरी डे जब भी से वो हॉस्पिटल में थी, एवरी डे शी इज होल्डिंग चंपा फ्लावर्स एवरी डे। तो फिर कुछ डिवोटी ने पूछा कि माता जी आप से चंपा फ्लावर क्यों लेके बैठे हो? तो वो बोल रहे थे कि अगर मैं शरीर छोड़ूंगी तो ये चंपा फ्लावर मैं लॉर्ड को दूंगी। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो दैट्स हाउ, लाइक वो एक डिवोटी के बेटी है, और उन्होंने एग्जाम मीन्स लाइक उन्होंने बताया कि लाइफ कैसे जीना चाहिए और कैसे छोड़ना चाहिए। और उनके बारे में एक छोटा पैराग्राफ एक डिवोटी ने लिखा है कि उन्होंने कभी उनके लाइफ में कभी भी वैष्णव अपराध नहीं किया, कुछ भी ऑफेंस नहीं किया। शी ऑलवेज चैंटिंग भगवान का नाम हमेशा गाती थी, चैंटिंग करती थी। और हम लोग देख सकते कि वो आज शरीर छोड़ दिया, और कल राधा स्वामी महाराज ने उनको फोन करके उनको इनिशिएशन भी दे दिया। So that's how the glorious life of Vaishnava. Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol. Yes, Prabhu, art of living and art of living. This is true art. Thank you, Prabhu, for this wonderful story. Sanika Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु। मुझे भी मतलब एक एग्जाम्पल शेयर करना था प्रभु। जैसे कि मतलब मेरे फ्रेंड के रिलेटिव्स में हुआ था। तो प्रभु ये मतलब 17 साल की लड़की 12th में पढ़ रही थी, अभी 12th में गई थी। तो उसको परसों वो जैसे पढ़ाई कर रही थी प्रभु, कि जैसे ही उसको ना जैसे पढ़ाई करते करते ही उसको माइनर अटैक आ गया और वहाँ पे खत्म हो गई। तो ऐसी जो मौत रहती है प्रभु, तो मतलब वो क्या मतलब जैसी लिखी हुई मौत रहती है कि वो क्या रहता है प्रभु, वो पूछना था मुझे। हरे कृष्णा। सॉरी माताजी, कैसे और एक बार आप वो जो जस्ट। हाँ वो लड़की थी ना प्रभु, 17 साल की लड़की थी, 12th में गई थी अभी। तो वो जो लड़की को ना माइनर अटैक आया, मतलब पढ़ाई करते करते ही उसको, उसके मम्मी पापा को भी पता नहीं चला कि वो लड़की उनको लग रहा है कि वो लड़की पढ़ाई कर रही है करके। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जैसे पढ़ाई करते करते 2-3 मिनट में ही उसका देहांत हुआ प्रभु। तो उसको माइनर अटैक आया। तो ये जो ये रहती है, मौत रहती है प्रभु, तो इसको कैसे मतलब क्या कहा जा सकता है? वो मतलब लिखी हुई मौत रहती है या क्या है इसका? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मतलब गोपीमोहन प्रभु इसके ऊपर और बता सकते हैं। मतलब वही जैसे हम लोग अपना जो जैसे हमको इस शरीर मिलता है उसके साथ तय रहता है अपना, मतलब हम कितने साल जिएंगे वगैरह। मतलब वो बोलते कि हमारे सांसे के ऊपर हम कितने ब्रीथ लेने वाले, कितने सांस लेने वाले ऑलरेडी तय रहता है। तो इसलिए मतलब कहते हैं ना, हमको खाली अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, डेट ऑफ डेथ नहीं। तो अभी इसमें क्या है कि वो नेचुरली मतलब उसको अटैक आके गया, सो इट इज ऑलरेडी मतलब ये क्या बोलते हैं अव्यर्थ काल, मतलब कभी कभी समय से पहले भी ऐसे घटनाएं होती है। तो इट इज ऑल्सो मतलब नेचुरल इसमें ही आता है, उसका आयु इतना लिखा गया था। अगर गोपीमोहन प्रभु आप कुछ ऐड कर सकते। हरे कृष्णा। ये बहुत मतलब दुख होता है ऐसा सब सुन के कि मतलब छोटी बच्ची है, मतलब 17 साल की है, मतलब जस्ट 12th में है। लेकिन एक्चुअली ये सब बोलते हैं ना, हम लोग जैसे बोलते हैं कि डेस्टिनी में लिखा हुआ रहता है। तो ये जो है उसका इसको मतलब अकाल मृत्यु नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट या ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उसका तकदीर में लिखा था, वो उसका हार्ट अटैक लिखा था, उसको वाया हार्ट अटैक उसको जाना था। तो उसका उतना ही होगा, टाइम होगा उतना, खाली 17 साल का।
और जैसे हम लोग देखते हैं कि अभिमन्यु अभिमन्यु भी कितना छोटा था, वो 16 साल का था, लेकिन जब मतलब सब बोलते हैं कि मतलब अर्जुन भी रोता है, सुभद्रा क्यों इतने से छोटे बच्चे को हमारे मतलब क्या था मतलब उसका, तो वो बोलते हैं कि उसका आयु ही उतना था उसका। एक्चुअली उसके पीछे लंबा स्टोरी, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग देखें तो अपना आयु सबका लिखा होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी और दुकान में, किसी भी शॉपिंग मॉल में हम लोग जाते हैं तो हर प्रोडक्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, एक एक्सपायरी डेट होता है। तो फर्क इतना है कि हम लोग को हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट पता है, हम लोग को एक्सपायरी डेट नहीं पता। तो दिस इज जो है मतलब एक डेस्टिन्ड, मतलब उसको उसका आयु इतना ही लिखा होगा, इसके लिए ऐसा होगा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। मतलब ये इससे पता चल जाता है ना प्रभु कि इसका टाइम कोई कुछ भी टाइम नहीं है। मतलब वही मैं कल घर में भी डिस्कस कर रही थी, इतनी छोटी लड़की पढ़ाई के लिए बैठ रही है और उसके मम्मी पापा बाजू में ही है, फिर भी उनको पता नहीं चला कि हमारी लड़की 2 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई, और उनको भी नहीं पता चला, मतलब वो लड़की को भी शायद से पता नहीं चला कि उसका ये होने वाला था। तो वही हम घर में डिस्कस कर रहे थे प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। या मतलब ये एक मतलब बहुत ही मतलब मतलब उनके माता पिता के लिए, सभी रिलेटिव्स के लिए बहुत दुख का बात होगा, लेकिन ये मतलब वही है कि उसका तकदीर ही उतना था, उसका डेस्टिनी उतना था। अभी उसको मतलब आगे, अभी वो आगे कहाँ ट्रैवल करेगी उसके अपने कर्म के हिसाब से, वो तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन उसका डेस्टिनी उतना ही था, उसका लाइफ। हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। आ, इससे पता चलता है कि बच्चों को, जब बच्चे जैसे अभी हमारे यहाँ इस्कॉन में होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उन्हें भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते, क्योंकि उसने अपने जीवन में जब वो जन्म से 17 साल तक हो, अगर वो भक्त के घर में होते तो वो भक्ति तो उतना तो कर लेते, कितना थोड़ा बहुत भक्ति कर लेते, भगवान के कैसे याद करना है वो सीख लेती, तो इस जन्म का थोड़ा तो सार्थक हो जाता। इसलिए अभी हमें भी कभी भी अपने बच्चों को ऐसे टाइम पास ज्यादा करते नहीं देखना, हमेशा बोलना कि अब भगवान, जैसे बच्चे लोग कुछ कर रहे होते ऐसे ही टाइम पास, तो थोड़ा सा एक माला तो जप लो, थोड़ा सा भगवान का छोटा छोटा बुक देने का, ये पढ़ लो, या फिर हम ही को कुछ ना कुछ स्टोरी सुना देना या जो अच्छी लगे बच्चों को, तो उससे बच्चों का भी फायदा होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। और प्रहलाद महाराज का अगर हम देखेंगे तो आपने जो बोला एकदम परफेक्ट, मतलब थैंक यू माता जी। अब रजप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, सबको हरे कृष्णा प्रभु। बहुत ही अच्छा क्लास था और बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन इम्पोर्टेंट जैसे बोलते ना। और आपने ये जो एग्जाम्पल दिया था कि दूसरे जन्म में जन्म लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी है, कि ये मेरा घर है, ये कुछ भी जब मृत्यु होती है, जैसे आपने सिंगर का भी एग्जाम्पल दिया, तो वो जैसे केके का भी हमने सुना था जो, और इवन लता मंगेशकर हो के अमिताभ बच्चन हो के शाहरुख खान हो, कोई भी हो, आज लता मंगेशकर भी कितनी भी उम्र की बढ़ गई, कितना 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 नाम, कितना शोहरत, सब कुछ उसको मतलब हुआ, लेकिन डेथ, मौत तो होनी होनी है। कोई कोई कितना, जैसे हमने माइकल जैक्सन का भी एग्जाम्पल सुना के कितना भी नाम हो, कितना भी वो बचाव करे, कितनी भी मेडिसिन खा रहा था, कितने डॉक्टर्स उसके आसपास थे, लेकिन मौत से कोई बच नहीं सकता है। तो ये एक खाली हमारे में फर्क इतना हो जाता है कि हम भक्ति में आ जाते हैं ना। डर तो मौत का सबको रहता है, और प्राण जो अपने होते हैं ना वो सबको प्रिय होते हैं, लेकिन फर्क खाली इतना होता है कि हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें वो जो डर होता है उसका मतलब उसका वो मौत का प्रभाव वो कम रहता होता है। डर रहता है लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर वो
कम होता है, क्योंकि हमारा ध्यान वो कंसंट्रेशन हम ध्यान देते हैं भक्ति पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें हमारी भक्ति पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे एक एज होती है तो हमें वो एक अलग से वो जगह होकर के हमें भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रभु बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत कुछ सीखने मिला और आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, इसलिए इतने अच्छे अच्छे पॉइंट आप हमें बता सके। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी एंड हरे कृष्णा। Hare Krishna, very nice. We all should be Markandeya to extend our life. So, it was very nice. थैंक यू वृत्ति माता जी, नंदिनी माता जी, सब आप लोगों का ब्लेसिंग और प्रभुपाद गोपीनाथ प्रभु। हाँ वृत्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अभी सनिका माता जी की बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई। अभी 1 महीने पहले जब मैं इंडिया में थी तो हमारे सामने एक लड़का रहता है, उसके वो लोग जा रहे थे गोवा बाय कार और हस्बैंड वाइफ और उसकी बेटी थी 7 साल की। दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं हुआ और उसकी बेटी ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे खत्म। और उसके 3-4 साल पहले ऐसा हुआ था कि वो लड़के का ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी बेटी मर गई 7 साल की। वो लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि वो सब कुछ भूल गया था। उसको इतनी मेहनत, इतनी प्रेयर्स, उसकी माँ की इतनी प्रेयर उसने भगवान को की होगी। वो अपनी बेटी और अपनी माँ मतलब अपनी बीवी को भी नहीं पहचानता था और कभी पहचाने कभी भूल जाए, कभी पहचाने कभी भूल जाए। तो उसकी माँ ने उसको इतनी भगवान को प्रेयर की होगी कि वो लड़का ठीक हो गया। लेकिन 3-4 साल के अंदर ही दूसरा एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बच गए। उसकी बेटी जो 7 साल की थी, जब वो मर गई उसके 3-4 दिन पहले उसका बर्थडे था और मम्मी पापा बच गए, लड़का और लड़की जो दोनों थे वो बच गए और उसकी जो बेटी थी 7 साल की उसी टाइम पे खत्म। कहने का मतलब है कि डेथ का कुछ भी वो नहीं है। और मतलब हमारे वहाँ 2-3 लोग बोल रहे थे कि उसकी माँ ने अपने बेटे के लिए भगवान को बहुत वो किया। तो बोलते हैं ना कि मतलब एक ये दी, उसके बेटे की लाइफ दी तो पोती की, मतलब वो छोटी बच्ची की लाइफ खत्म। और वो किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना मतलब वो के 7 साल की बच्ची, माँ बाप को कुछ नहीं हुआ। हाँ, और ऐसा हुआ कि उसकी माँ को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ और जो लड़का था जो उसको थोड़ा बहुत ऐसा चोट लगी होगी कि उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ा। और अभी थोड़ा कोविड वो टाइम पे अभी थोड़ा ये हो रहा था तो ज्यादा ये नहीं कर पा रहे थे मिलने करने का। लेकिन इस वजह से वो लड़के का थोड़ा हालत ऐसा हुआ था कि वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकता था, मतलब शमशान में। लेकिन वो लड़की को उसके बाप के पास बताने के लिए लेके गए। तो कहने का मतलब है कि आदमी कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जो मौत है ना वो लिखी हुई है, वो किसी को भी। अंबानी भी था, वो भी अपने बाप को नहीं बचा सका और लता मंगेशकर भी खुद के कितना भी पैसे का कितना भी खर्चा करो, कुछ भी करो, लेकिन मौत से बच नहीं सकते। लेकिन भक्ति के में रह के हम जो हमारा वो जो डर का ये होता है वो कम कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी भक्ति पे। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। और सही में मतलब यहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। मतलब एक तंदुरुस्त आदमी भी मतलब कब ये हो जाए कुछ नहीं पता। थैंक यू। या हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती स्टार्ट करते हैं।